اہم خبر کے ساتھ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سٹیل ٹاؤن کی دکان میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اہم خبر ہے، سٹیل ٹاؤن کی دکان میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹیل ٹاؤن میں دکان میں یہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئی ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئی ہیں۔ سٹیل ٹاؤن کی دکان میں سلنڈر دھماکہ، 3 افراد ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو چکی ہیں۔ سٹیل ٹاؤن کی دکان میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، 3 افراد ابھی بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں، جس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر پہنچ رہی ہیں۔ سٹیل ٹاؤن کی دکان میں یہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس شیئر کیجیے گا جاوید۔ بالکل جی، 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع تھی اور دھماکہ جو ہے وہ دکان کے اندر ہوا۔ گیس کی ہی دکان تھی، LPG سلنڈر فلنگ وہاں کیے جاتے تھے۔ فلنگ کے دوران ہی جو ہے زوردار دھماکہ ہوا جس سے سلنڈر پھٹا اور 3 افراد جو ہے جھلسنے سے زخمی ہوئے۔ اپر پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ زیادہ زخم آئے، جس میں سے ایک کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جاتی ہے، جسے فوری طور پر جو ہے بنسواڑ سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس، ریسکیو اور دیگر ٹیمیں جو ہیں وہ اطلاع ملتے ہی فوری واقعے میں پہنچی، لیکن اس سے پہلے جو ہے اپنی مطلب کے تحت لوگوں نے ریسکیو کر لیا تینوں زخمیوں کو اور فوری قریبی اسپتال پہنچایا، جبکہ 2 کی حالت جو نارمل تھی جنہیں وہیں پر ہی جو ہے ٹریٹ کیا گیا اور ایک جو شدید زخمی تھا اسے فوری طور پر سول اسپتال بنسواڑ پہنچایا، جبکہ پولیس نے جو ہے وہ ایریو کو، ساری دکان کو جو ہے وہ کارڈن آف سیل کر دی، جبکہ گیس کے محکمے کے جو ماہرین ہیں یا سلنڈر جو LPG وغیرہ کے جو عملہ ہے ان کو طلب کر لیا گیا۔ دیگر سلنڈر وہاں موجود ہیں، انہیں ممکنہ طور پر ریسکیو کیا جائے اس ایریا سے، اس لیے کہ وہ دکانوں کے ساتھ جو رہائشی گھر بھی موجود ہیں اور عمارات ہیں، تو ممکنہ طور پر مزید خطرات اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پولیس کا بھی ریسکیو آپریشن سلنڈرز کے حوالے سے جاری ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا جاوید، رات کا وقت ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے دھماکہ ہوئے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کیا بند دکان کے اندر دھماکہ ہوا یا وہاں پر لوگ موجود تھے؟ دیکھیے جی، دکانیں جو ہیں تقریباً کراچی کے اندر گیس کی پریشانی کا سامنا ہے اور یہ سٹیل ٹاؤن کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ شاہ ٹاؤن جو ہے یہ علاقہ ہے جو گزشتہ 2 روز قبل بھی جو ہے وہ سٹیل ٹاؤن کے مکینوں کے اطراف میں جو ہے وہ گیس بندش کے خلاف مرکزی شاہراہ کو بند کیا تھا۔ گیس کی پرابلم ہے اور دکانیں دیر تک جو ہے کھلی جاتی ہیں اور دکان اس وقت کھلی تھی، اس پر یہ لوگ ہی موجود تھے جو اس میں جو متاثر ہوئے ہیں۔ مزید جو ہے وہ چہل پہل اتنی نہیں تھی اور تقریباً 11:50 کا یہ واقعہ ہے۔ اسی دوران جو ہے یہ واقعے کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور اسی دوران یہ گیس کی فلنگ کے دوران گیس میں گھر کے اندر جو گھریلو سلنڈر استعمال کیا جاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ مختلف شہری جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے سلنڈر خریدتے ہیں، وہ پورے SOPs کے مطابق نہیں ہوتا، جس کے باعث جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکا سلنڈر اور زوردار دھماکے سے جو ہے وہ پھٹا ہے، جس کے پھٹنے کے باعث جو ہے وہ 3 وہاں پر دکاندار اور شہری جو موجود تھے وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جاتی ہے، جو زیادہ اس کو انجریز آئی ہیں، اسے بنسواڑ منتقل کیا ہے اور اب تک کی اطلاعات اور تحقیقات کے مطابق اس وقت چہل پہل اس لیے کہ مضافاتی علاقہ ہے شہر کا اور اس وقت جو ہے وہ زیادہ لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ 11 بجے کے بعد جو ہے وہ آلریڈی لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا تو زیادہ چہل پہل نہیں تھی، لیکن دکان کھلی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ جاوید آپ۔ کراچی میں بچوں کے اغوا اور گمشدگی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ روشنی ہیلپ لائن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک 300 کے قریب بچے اغوا اور لاپتہ ہوئے۔ شاذب حسین کی رپورٹ۔ رواں سال میں اب تک 300 کے قریب بچے و بچیاں اغوا اور لاپتہ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق صرف 4 ماہ کے دوران 339 بچے اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ روشنی ہیلپ لائن کے مطابق شہر سے کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ روشنی ہیلپ لائن کے سربراہ محمد علی کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کو بے اولاد جوڑوں اور گداگروں کو فروخت کرنے کے لیے مبینہ طور پر اغوا کیا جاتا ہے۔ لاپتہ بچوں میں 221 سے زائد بچوں کو ریکور کیا گیا۔ نومولود سے 6 سال کی عمر کے 15 بچے مبینہ طور پر اغوا ہوئے۔ اغوا اور لاپتہ بچوں میں 200 بچے اور 50 سے زائد بچیاں شامل۔ اعداد و شمار کے مطابق ماہ جنوری میں سب سے زیادہ 113 بچے اغوا اور لاپتہ ہوئے۔ شہر قائد میں ضلع غربی سے بچوں کی لاپتہ ہونے کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ سال 2024 کے پہلے ماہ جنوری میں 113 بچوں کی اغوا اور لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج ہوئی۔
फरवरी में 70, मार्च में 56 बच्चे गुम हुए। रवा माह में अब तक 60 के करीब लापता हुए। ज्यादातर बच्चों के लापता होने के वाक़यात गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, नुमाइश, माड़ीपुर, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोनुमा हुए। जिला गरबी में सबसे ज्यादा 41 बच्चों के पुरस्रार लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती से 26, शर्की से 32, डिस्ट्रिक्ट सिटी से 22, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से 29 बच्चे अगवा हुए। जिला कोरंगी से 40, जिला जनूबी से 18 और मलीर से 31 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ एहतजाज। 5 स्टार चौरंगी नाज़माबाद पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत एहतजाजी मुजाहरा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और सूबाई असम्बली के रुकन अब्दुल वसीम ने कहा, लोग घर से निकलते हैं, मोबाइल छिन जाता है, डकैत शहरियों की जेबें खाली कर देते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ लोग सड़कों पर। 5 स्टार चौरंगी नाज़माबाद पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत एहतजाज। मुजाहरे से खिताब में MQM पाकिस्तान के रहनुमा सूबाई असम्बली के रुकन अब्दुल वसीम का कहना था कि कुछ पुलिस एहलकार जराइम में मुलव्विस हैं। SHOs को सब मालूम है कि कौन सा जुर्म कहाँ हो रहा है। पुलिस में पैसा तकसीम होता है, इसलिए जराइम नहीं रुकते। और ऐसा नहीं है कि SHOs को नहीं पता कि कहाँ कहाँ जराइम हो रहा है, कहाँ हीरोइन बिक रही है, कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ सट्टा हो रहा है, कहाँ जुआ हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन वहाँ से सबको पैसा मिलता है, हफ्तेवार पैसा जमा होता है और वो पैसा फिर तकसीम होता है। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जमशेद हुसैन का कहना था कि रियासत जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। थाने फरोख्त होते हैं जिससे दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। कराची शहर के साथ ज्यादती यह है कि यहाँ पर मकामी अफसरान को नहीं तैनात किया जाता, बाहर से लोगों को लाकर आकर तैनात किया जाता है। हमारे यहाँ थाने बिकते हैं और उन्हीं थानों के जरिए से पूरे शहर के अंदर एक दहशत गर्दी होती है। मुजाहिरीन ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध से बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ कामरान मिनहास, सिटी 21। सुप्रीम कोर्ट ने कराची समेत मुल्क की सड़कों, फुटपाथों से रुकावटें फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया, जबकि तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि कराची के सड़कों पर कंटेनर्स के बायस पैदल चलना मुश्किल है। इस हवाले से मुमताज जमाली की रिपोर्ट। सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे, पैदल चलने वालों को मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़कों फुटपाथों से रुकावटें फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तजावुजात से मुतालिक दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि कराची के सड़कों पर कंटेनर्स के बायस पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। फुटपाथों से फौरी कंटेनर्स हटाए जाएं। हाँ, ये गलत चीज़ है ना, लोगों को परेशानी होती है, इमरजेंसी में कोई जा रहा है, कोई बाइक एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई होती है, तो इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, बंदा रास्ते में काम हो जाए, उसका मर जाए, तो ये चीज़ें हटनी चाहिए। अगर इन लोगों को हटाया जाएगा तो इनका रोजगार कैसे होगा? इनको कोई रोजगार दें, इनको कोई दुकान दें, अच्छा काम नहीं हुआ। ये गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा तो ये क्या कि हमारे गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको आप हटा देंगे तो इनको क्या मिलेगा, कहाँ पे रोजगार करेंगे फिर? तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि कंटेनर्स लाए गए और रोड ब्लॉक किए गए, लेकिन बाद में कंटेनर्स हटाकर फुटपाथ या रोड किनारे रख दिए गए। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक है, नकलो हरकत में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तवील मुद्दत के लिए फुटपाथ बंद करने और पैदल चलने वालों को रुकावट डालने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। पैमरा इस जमन में पब्लिक सर्विस मैसेज शाये और नशर करे। गुजर नाले से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मुतासरीन को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की राय के बाद 1 माह में अलॉटमेंट और रकम देने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची में 6,932 नाला मुतासरीन को 80 गज का प्लॉट और 10 लाख रुपए तामीरात के लिए मुख्तस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के प्लाट को बेचकर मुतासरीन को रकम अदा करने का भी हुक्म दे दिया। प्लॉट के फरोख्त के लिए इश्तहार जारी करने का हुक्म देते हुए ऑफिशियल असाइनी को तफसीलात वसूल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गुलशन इकबाल में रेलवे की जमीन पर मुबैना बनने वाली तिजोरी हाइट से मुतल्लिक नजरसानी की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। मुमताज जमाली, सिटी 21। शहर कायद में गैस मसाइल से मुतासरा इलाकों में तारिक रोड कमर्शियल एरिया भी शामिल है, जहां 5 माह से संगीन गैस बहरान ने घरेलू और कमर्शियल सरगर्मियों को मुतासर करके रख दिया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
तारिक रोड कमर्शियल एरिया में गैस मसाइल संगीन, पकवान सेंटर्स की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर, मालकान ने सर पकड़ लिए। पकवान सेंटर के मालकान का कहना है कि 5 माह से गैस का संगीन बहरान है, जिसके बायस ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, यौमिया फी सिलेंडर 9,000 रुपये का भरवाते हैं। सिलेंडर के इस्तेमाल के बावजूद गैस बिलों की अदायगी से अखराजात बढ़ गए हैं। मतलब परेशानी हो गई कारोबार करना हमारे लिए, तो हम तो कंपनी के में भी पैसे भर रहे हैं, बिल के मतलब नाजायज़ पैसे भर रहे हैं, मतलब है समझ में, और ये सिलेंडर भी भर रहा है, जिसकी वजह से हम काम भी पूरा नहीं कर सकते वक्त के ऊपर, मतलब ये, और फिर खतरा अलग रहता है, खुदा ना खास्ता कहीं से लीक हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, बंदा कुछ हो जाए, मतलब या कस्टमर वगैरह कुछ ऐसा, वो देख के भी हैरत करते हैं, मतलब इसमें बार बार थोड़ा गर्म पानी डालना पड़ता है, मतलब हमारा सिलेंडर गर्म करने के एकदम ठंडा हो जाता है सिलेंडर, मतलब ये हम काम को पूरा भी नहीं कर सकते, मतलब इसको, और इतना कहेंगे कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, मतलब बेतहाशा महंगा हो गया, इसको हम कवर भी नहीं कर सकते, मतलब ये। सार्फिन का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लाइन्स एरिया के इलाके AB सीना में 4 रोज से बिजली गायब है। इलाका मकीन शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली कंपनी ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। फारहान खान की रिपोर्ट। बिजली की अदम फरामी ने AB सीना के मकीनों को बेहाल कर दिया। 4 रोज से बिजली ना होने पर लाइन्स एरिया AB सीना के मकीन घरों से बाहर रहने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी ठप होने से शहरी अजियत में मुब्तला। खवातीन कहती हैं 4 दिन से बिजली कंपनी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। शहरी गर्मी की वजह से घर से बाहर सोने पर मजबूर हो गए। इतनी परेशानी है बस पूछो नहीं। मेरे बेटे के इतने बिल आ रहे हैं और है ना गैस नहीं है, बत्ती नहीं है। 4 दिन हो जाते हैं बाहर बैठे हुए, बच्चे कामों पे जाएं या ये हमारी परेशानियां देखें। गैसों की टंकी उठा के लेके जा रहे हैं। गरीब आदमी है बेटा, 25,000 रुपए तनख्वाह और है ना हमारे बिल इतने बड़े बड़े। जो हमारी आपने PMT अलग की है, आप हमसे रब्ता रखें, हमसे आप बिलों की अदायगी के लिए हमसे बोलें। अगर हम नहीं जाते तो आप कहें हम आपका बिल भी हम आप दे सकते हैं, लेकिन यही गुजारिश मैं करती हूँ कि बाखुदा उनके साथ हमें ना मिलाएं और इस अजियत से हमें बचा दें। हमारा बिल दे दो कि हम बिल भर दें, बिल दे दो। पहले तो कोई कान में तेल ही नहीं डालेगा, जूं तक के नहीं रखेगी, और जब अगला महीना आएगा तो वो इतना बड़ा होगा कि इंसान भर ही नहीं सकेगा। मकीनों ने शिकवा किया कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की बिला तातुल फरामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हैदर के साथ फारहान खान, सिटी 21। बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगाही। सफारी पार्क में सेहत मेला सज गया। मेले में आगाही के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियां भी जारी हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाने का मुनफरिद तरीका। सफारी पार्क में सेहत मेला सज गया। सेहत मेले में बच्चों में फैलने वाली टाइफाइड और असहाल जैसी बीमारियों समेत दीगर के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से मुतालिक आगाही दी जा रही है। डॉक्टर फरहाना मेमन ने तमाम बीमारियों की जड़ नाख्वानदगी और फैमिली प्लानिंग न होने को करार दिया। कहा इन पर काबू पाकर मुल्क भर में सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। हम 2 चीज़ें सही कर लें, एक लिटरेसी रेट बढ़ा लें और एक फैमिली प्लानिंग बढ़ा लें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना सिरा पकड़ना, तो हम ये 2 सिरे पकड़ लें कि हम बाउंड कर दें कि बच्चियों को पढ़ाएं। लिटरेसी सब पढ़ें लेकिन फीमेल लिटरेसी होनी चाहिए। और दूसरा हम उससे पे CPR खुद बहुत बढ़े और हम अकाउंटेबल कर दें कि किसी भी तरह हमने CPR फैमिली प्लानिंग यानी उस पर CPR हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव पे, जो कि हमारा बहुत नीचे है। मेले में स्टॉल्स लगाने वाली हेल्थ वर्कर्स ने वालिदैन को बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखने का मशवरा दिया और बच्चों की वैक्सीनेशन कराने पर भी जोर दिया। टीके लगवाने से होता है कि वो बहुत सी बीमारियों से, जो ख़तरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। और सफाई का ख्याल रखें, हम वालिदैन को ये बताते हैं कि सफाई का ख्याल रखें। अगर जो टीके से मामूली बुखार भी होता है, बहुत से वालिदैन घबराते हैं कि बच्चे को बुखार चढ़ जाएगा, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, तो हम उसको भी बताते हैं कि भाई आप उस पर बर्फ़ लगाएं, स्वेलिंग या हल्की सी सूजिश आना कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह के अगर इवेंट्स हमारे लिए कंडक्ट होंगे तो ऐसा होगा कि हमारे साथ जो पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन पे, उनके साथ हमारी एक बिल्ड होती है, रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है, एक दूसरे को जानने को मौका मिलता है। दूसरी चीज़, इस तरह के इवेंट्स हमारे लिए कंडक्ट होनी चाहिए। हमारे जो हिफाजती बीमारी से बचने के जो इक़दाम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि हमारे हेल्थ फैसिलिटी पर कम जो है वो बर्डन पड़े। सेहत मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ मेहंदी के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। जामे NED में NEDN कन्वेंशन 2024 का इनेकाद। NED इंटरनेशनल एलुमनाई नेटवर्क एसोसिएशन पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक़िद की गई। मज़ीद जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया NED में मौजूद हूँ और NEDian कन्वेंशन 2024 का आज यहाँ पर इनेकाद किया गया है और NED यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज ने बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर शिरकत की है। शेखुल जामिया NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज हशमत लोधी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से 2024 का साल है, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आपकी ये कन्वेंशन हर साल की तरह इस साल भी मुनक्किद हुई है। मुझे बताइए NED यूनिवर्सिटी के नज़र में एलुमनाइज की क्या हैसियत है? NED यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी रिसोर्स है वो इसके एलुमनाई है। देखिए ये बच्चे जब यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं तो माशाल्लाह आपने देखा कि कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और ये अपने इदारों को हेड करते हैं, डिफरेंट मुल्कों में जाके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और जॉब्स में बड़ा तेज़ी से फ्लरिश करते हैं। तो NED यूनिवर्सिटी की जो बिगर स्ट्रेंथ है वो उसके तालिब इल्म है। और आपने देखा आज भी और हमेशा कि NED यूनिवर्सिटी की कोई भी फील्ड हो, ज़ाहिर इंजीनियरिंग तो प्राइमरी फील्ड है और आज आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में ऐसे इंजीनियर्स थे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनको आज अवार्ड भी दिया गया है। तो बहुत बड़ी रिसोर्स है। इनके वसाइल, इनकी नॉलेज, इनका तजर्बा, ये सब हमारे बच्चों के काम आता है और आना भी चाहिए। और बड़ी खूबसूरत सी बात है, हमारी आंखों देखी बात है कि 2 ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा सैकड़ों जो क्लासरूम्स हैं उसकी इनाग्रेशन की गई। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एलुमनाइज को इकट्ठा करना और उनके अंदर एक जज्बा अपने इदारे के लिए बरकरार रखना वो एक बहुत अहमियत के हामिल है और यही चीज़ आज हमें आपकी इस यूनिवर्सिटी में दिखाई देती है कि ये यूनिवर्सिटी एक गुलदस्ते की मालिक है जिसमें तमाम एलुमनाइज जो हैं आपके बेहतरीन दोस्त समेत, जो कि वज़ीर आला सिंध है हमारे ऑनरेबल, उन समेत जो है तमाम तर लोग NED के लिए आज तक खड़े हैं। तो मुझे बताइए ये जज्बा क्या एज ए तालिब इल्म उसी टाइम पर उस्ताद जो है आप लोगों के दिमाग पर बिठा देता है? देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कुदरती तौर पे आपको अपने मादरे इल्मी से उनसियत और मोहब्बत होती है। अब ये मादरे इल्मी का फ़र्ज़ है कि जब उसके चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं तो उनको किसी तरह से एंगेज करें, उनको इज़्ज़त दे, उनको मकाम दे और उसके नतीजे में जो फ़ायदा है वो इदारे से ज़्यादा इदारे में जो तालिब इल्म है उनको होता है। और यही हमारा मकसद भी है कि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जॉब प्लेसमेंट्स, उनकी इंटर्नशिप्स, उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, उनकी मेंटोरशिप, ये सब चीज़ें उन बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। और इससे बेहतर क्या होगा कि तजर्बेकार लोग ये काम करें। उससे बेहतर क्या होगा कि तजुर्बेकार लोग ये काम करें। प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया। NED यूनिवर्सिटी की जो सालाना कन्वेंशन थी एलुमनाइज की वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जी खेल के मैदान से खबर ये है कि नेशनल कोचिंग सेंटर में 5वीं कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू हो गई। ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुकाबले 6 कैटेगरीज में कराए जा रहे हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। शहर कायद में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शानदार 5वीं ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप नेशनल कोचिंग सेंटर में जारी है। इवेंट में मुकाबलों को जूनियर कैटेगरीज, किडर, स्कूल, सीनियर और क्लब लेवल का नाम दिया गया है। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तलिबात ने खुशी का इजहार किया। ताइक्वांडो में कराची ताइक्वांडो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे और मैं फाइट में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और अब मैं इंशाल्लाह ब्लैक बेल्ट तक ताइक्वांडो करती रहूँगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं अपनी आर्मी पब्लिक स्कूल में आया तब मैंने ताइक्वांडो के बच्चों को देखा और मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि हाँ इट इज़ अ ताइक्वांडो। फिर मेरे अंदर एक जोश मतलब एक मेरा को जज्बा पैदा हुआ कि मेरे को भी ताइक्वांडो में लेना है। मुझे ये इवेंट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था। मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों के वालिदैन बोले पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ के लिए। एक जरा बच्चे का माइंड फ्रेश होता है। आजकल का जो माहौल है बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो चाहते हैं हम स्क्रीन यूज़ करें घर आके। इसके लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। फिज़िकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के दौर में जैसे हालात चल रहे हैं उससे रिगार्डिंग मैं तो सबको कहूँगी कि आप बच्चों को ताइक्वांडो में करवाएं। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कराची के 30 क्लब और 15 स्कूलों के तलबा और तालिबात शरीक हैं। मुकाबले 2 रोज तक जारी रहेंगे। कैमरामैन इमरान AK के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।